नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर इस वक्त की संदेश खाली से, पश्चिम बंगाल से। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली में कलकत्ता हाई कोर्ट ने तगड़ी फटकार यहां पर ममता बनर्जी को लगाई है और शुभेंदु अधिकारी को परमिशन मिल गई थी संदेश खाली विजिट करने को लेकर, जहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने की बात पहले कही थी, लेकिन लाठियां बरसाई गई, गोली डंडे बरसाए गए। आपको बता दें, इस बीच सुकांत मजूमदार घायल हो गए थे। अब सुनिए जरा, 3-4 खबरें पश्चिम बंगाल से होकर आ रही है। सबसे पहली खबर तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर जानेंगे वहां का हाल। ममता को क्या ऐसा लग रहा है कि वो देश से अलग हो गई है, तो इनकी भूल होगी। दर्शकों, बहुत खराब सिचुएशन संदेश खाली में। टीएमसी का शेख शाहजहां अरबपति बन चुका है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, भागा हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी की नेत्री यहां पर लॉकेट चटर्जी साफ तौर पर कह रही है कि टीएमसी का ये जो नेता है, जो दुष्कर्मी है और जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहा है और न जाने अपने आप को राजा समझ बैठा था, वो ममता की गोद में बैठा हुआ है। आपको इधर बताती हूं, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सीएए एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम जब तक जिंदा है देश में नहीं लागू होने देंगे, अपना खून दे देंगे, लेकिन किसी को भी बाहर नहीं होने देंगे। ये देखिए, आज के ধরনের জিনিস কেন করছেন এই নোংরামিটা? Why they are playing this dirty game? I'm asking the BJP party, do you think it is proper? Do you think it is justice you are giving to the people? You are snatching their democratic right. The beneficiaries' right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. कितनी बड़ी भड़काने की कोशिश। पहले तो एनआरसी और सीएए को समझाना चाहिए कि भाई, आपको नागरिकता दी जाएगी, आपसे नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। लेकिन देखिए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है, रोहिंग्या को भड़काने की कोशिश है। लेकिन खैर, अब केंद्र सरकार अपनी संभाल लेगी ये बात। अब देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार इसमें क्या बात संभालती है। अब इधर आ जाइए, ममता बनर्जी ने एक और नया ड्रामा रचा है। कह रही है कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया है। हजार हजार মানুষের কার্ড ইচ্ছা মতো কেটে দেওয়া হচ্ছে, ইচ্ছা মতো। এটা কি মানে গভর্নমেন্ট কি গায়ের জোরে চলে নাকি? গভর্নমেন্টকে তো কতগুলো আইন মেনে চলতে হয়। এটা গ্রস ভায়োলেশন অফ দ্য আদার রুলস, আধার কার্ড রুলস। এবং প্ল্যানিংটা কি? ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা আসামের মতো, নাকি প্ল্যানিংটা কি? স্পেশালি অত্যাচার হচ্ছে তপশিলি এবং সংখ্যালঘুদের উপরে। এবং আমার কাছে সবচেয়ে বেশি, এই দেখুন আমার কাছে চিঠি, তপশিলি ফেডারেশনের লোকেরা জানিয়েছেন, সবচেয়ে বেশি মতুয়াদের উপর হচ্ছে তাদের কার্ডগুলো ডিনোটিফাই করা হচ্ছে, নমশূদ্রদের করা হচ্ছে, এবং গরিব মানুষ, ক্ষেত মজদুর, খেটে খাওয়া মানুষ প্রত্যেকটা জেলায় করা হয়েছে। প্লাস রাজ্য সরকার কিছু জানে না, জেলা প্রশাসন কিছু জানে না। গায়ের জোরে লুঠেরা গভর্নমেন্ট সেন্টারের জমিদারি কায়দায় জমিদারের মতো আচরণ করে। জমিদাররাও আগে এ ধরনের আচরণ করতো না। এরা জমিদারদেরও হার মানিয়ে দেবে, যাকে ইচ্ছে তার কার্ড কেটে নেওয়া হচ্ছে। তাহলে করার প্রয়োজনটা কি ছিল? যখন করেছিলেন তখন আপনার কাছে ইনফরমেশন ছিল না? সব ইনফরমেশন নিয়ে এমনকি বডি স্ক্যান করেও তো করেছিলেন। কার কি অসুখ আছে সেটাও তো জেনে করেছিলেন। আধার কার্ডটাকে আপনারা আবার ব্যাংকে লিঙ্ক করেছিলেন, যে ব্যাংকের সাথে লিঙ্ক না হলে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট হবে না আধার কার্ড না থাকলে। নোটবন্দির নামে মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন, আধার কার্ডের নামে উপর অত্যাচার করেছেন। আধার কার্ড করতে গেলে 1000 টাকা করে নেওয়া হয়েছে, এবং এটা স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে ছিল না। এবং স্টেট বলে দেওয়া হয়েছে আধার কার্ড ছাড়া কেউ কোনো বেনিফিট পাবে না। তাহলে কি গরিব মানুষগুলো বেনিফিট পাবে না? আমি গরিব মানুষগুলোকে, আমার তপশিলি বন্ধু হোক, সংখ্যালঘু বন্ধুই হোক, জেনারেল কাস্টই হোক, মুসলিম বন্ধুই হোক, আমি সবাইকে এটুকু অ্যাসিওর করে বলতে পারি, বেঙ্গলে এনআরসি আমরা করতে দেব না। আমরা জীবন দিয়ে লড়াই করবো, রুখবো। 2 বেঙ্গলে ডিটেনশন ক্যাম্প আমরা করতে দেব না। 3, যে মতুয়া বন্ধুদের বলেছিল সিটিজেনশিপ রাইট দেবে, তাদের আজকে ফরেনার করে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছে। এটা তাদের অপমান করানো নয়?
অপমান করা নয়, নমশুদ্ধদের করছে, সব জেলায় হচ্ছে এটা। তো এতদিন কি ঘুমিয়েছিলেন কুম্ভকর্ণের মতো তারা? ইলেকশন আসার সময় মনে হয়েছে সব কেড়ে নাও, সব কেড়ে নেওয়া যায় না। আর সব কাটতে গেলে 355টা কমিটি পাঠিয়েছে বাংলায়, রোজই কাউকে না কাউকে পাঠায়। আর চোপড়ায় যখন শিশু মারা যায় তখন টিকিটাও দেখা যায় না। বিএসএফ এর গুলিতে যখন উত্তরবঙ্গে মারা যায় এদের টিকিটাও দেখা যায় না। মুর্শিদাবাদের ইমামকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এসে বাইরে বেইজ্জত করা হয়, এদের টুটিটাও দেখা যায় না। কোন সাধু সন্ত কাউকেই আমরা অসম্মান করি না। অনেক শঙ্করাচার্যরা আছে, তাদেরও জিজ্ঞেস করুন, তারাও আমার সাথে একমত হবে যে সবাইকে নিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়, এটা আমাদের সকলের একতা। दर्शकों, आधार कार्ड अगर निष्क्रिय हो जाता है तो कोई भी आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, उसको रिन्यू कराना पड़ता है, उसमें लंबा प्रोसेस होता है। अब इसी का पर्दाफाश किया है बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने एक पेपर दिखाया और कहा, ये देखिए कहां आधार कार्ड निष्क्रिय हुआ है, यहां पर डिटेल्स हैं जहां पर किस तरीके से आप आधार कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उस पर आप निम्न आदेशों के बाद अपनी चिट्ठी भरते हैं, अपना पूरा डिटेल भरते हैं और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ममता बनर्जी केवल चुनाव की वजह से इन मुद्दों को भड़काना चाहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुझे मिला, मैं कल सुबह 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा और जो विक्टिम फैमिली है उसका साथ मुलाकात करना, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है उसका फैमिली मेंबर का साथ मुलाकात करना मेरा फर्ज बनता है। वो एरिया में बहुत सारा भाजपा कार्यकर्ता है और बंगाल का मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का फर्ज बनता है बेसहारा जो जनता है, खास करके हमारी जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। हम लोग 10 तारीख से कोशिश कर रहा है, हम लोग का उम्मीद है कल हम लोग का जो कोशिश इतना दिन चल रहा था कामयाबी मिलेगी। 2 बार आपको पुलिस ने रोक दिया था दादा, अब कोर्ट का ऑर्डर भी मिल चुका है, क्या लग रहा है कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं, कोर्ट बोला है मैं जाऊंगा, पूछ पाएगा नहीं तो कल देखा जाएगा। भाई पहले से कैसे बोलूं? दादा, जिस तरह से आधार कार्ड को लेकर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ये पूरा झूठा है। आधार अथॉरिटी बंगाल बता दिया, भारत सरकार बता दिया, ये पूरा फेक है। बोले नहीं, नो कैंसिलेशन आधार, नो डीएक्टिवेटेड। जो हुआ रांची ऑफिस से हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रांची ऑफिस से जो लोग किया है ये ममता बनर्जी का साथ मिला हुआ है। तो वो बोले नया ममता बनर्जी खास करके हिंदू जो हमारी रिफ्यूजी है बांग्लादेश से रिलीजियस ग्राउंड में घर बार छोड़ के भाग के आया है, उसका वोट तोड़ने का कोशिश कर रहा है, मुतुआ संप्रदाय का वोट तोड़ने का कोशिश कर रहा है। ये लोकसभा चुनाव में उसका करीबी हार होगा, इसलिए सब कर रहा है। एनसीडब्ल्यू की टीम आज गई है, वो कह रहे कि ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग नहीं, देखिए मैं आई वांट एक्शन। वो उन्होंने नहीं, मैं बहुत रिपोर्ट देख लिया, भाषण भी सुन लिया। आई वांट एक्शन। दादा, यूसीसी को लेकर क्या कहना चाहिए? जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूसीसी को लेकर टारगेट कर रही है, बंगाल में भी यूसीसी को लेकर। यहाँ यूसीसी का कोई अभी कोई मुद्दा ही नहीं है। सीए है तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, हमारी गृह मंत्री बता दिया। सीए में किसी को तो भगाने का आइन नहीं है। तो ये संदेश खाली ममता बनर्जी आपने मुस्लिम वोट बैंक को उसको मुस्लिम को नौकरी नहीं दिया, हेल्थ नहीं दिया, एजुकेशन नहीं दिया, मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं किया, बिजली पानी और सड़क, रोटी कपड़ा और मकान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सब मुस्लिम लोग को नहीं मिला। 50-100 गुंडा बना दिया और उसको 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक बना दिया, जैसे बाकीबुर रहमान, जैसे शेख शाहजहां, ये सब लोग को गुंडा बना दिया। लेकिन असली जो विकास काम करने का काम मोदी जी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। और बाकी जो बात वो सब कर रहा है, यूसीसी, एनआरसी, डिटेंशन कैंप भगा देगा, ये करेगा, वो करेगा, आधार कार्ड, दूसरा कार्ड मैं इशू कर दूंगा। दूसरा कार्ड कैसे इशू करेगा? आधार कार्ड तो कैंसिलेशन ही नहीं हुआ, आधार अथॉरिटी ने बता दिया। ये वोट के लिए कर रहा है और खास करके हिंदू मतुआ समाज, बांग्लादेश से घर बार छोड़ के आए रिफ्यूजी हिंदू,
इसको गुमराह करने का काम ममता बनर्जी कर रहा है। इसमें कोई फायदा ममता जी को नहीं मिलेगा। ये सब मोदी जी का वोटर है। ये नारा मैं छत्तीसगढ़ में भी सुन के आया। छत्तीसगढ़ में मैं कैंपेनिंग में गया था दांतेवाड़ा में, वो वहां में दिख के आया रिफ्यूजी कैंप, सब रिफ्यूजी ने बताया आज रिफ्यूजी हबो ना मोदी जी के छाड़बो ना। दादा जिस तरह से मोदी जी है तो मुमकिन है। संदेश खाली को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी, अभी महिलाएं कह रही कि ममता बनर्जी अभी तक शाहजहां शेख को क्यों नहीं पकड़ पाई है? नहीं पकड़ा है ड्यू टू इलेक्शन। ये गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है, उसको संरक्षण देख के रखा है। बसीराट, बारासात, ये सब चुनाव में लोकसभा सीट जीतने के लिए ये गुंडा लोग का जरूरत है। शौकत मोल्ला का जरूरत है, राजा गाजी का जरूरत है, फौलता का जहांगीर का जरूरत है, शहीदुल गाजी का जरूरत है, शाहजहां का भी जरूरत है। आधार कार्ड के निष्क्रियता पर भी आपको यह खबर पता चल गई होगी कि कोई भी आधार कार्ड निष्क्रिय नहीं की जा रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला, कह रही हैं आधार कार्ड निष्क्रिय करके बीजेपी योजनाओं का लाभ नहीं देना चाह रही है, बीजेपी बंगाल से नफरत करती है, तमाम बातें न जाने बीजेपी बंगाल विरोधी है, दलित विरोधी, महिला विरोधी है। आपको बता दें ममता बनर्जी अभी थोड़ी सी कंफ्यूज चल रही हैं। राम श्याम वाम पर निशाना साधा, कह रही हैं बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस सब मेरे खिलाफ है और इनकी राजनीति में सफल नहीं होने दूंगी। तो खैर ये ममता बनर्जी हैं, आज दिन कुछ ना कुछ बोलती है। दर्शकों, मात्र देश की महिला मुख्यमंत्री और महिलाओं के साथ इन्होंने इतना अत्याचार होने दिया। आपको बता दें संदेश खाली की महिलाएं, श्वेता सिंह आज तक की रिपोर्टर, जानी मानी देश की सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टर्स में से एक, एंकर्स में से एक श्वेता सिंह वहां विजिट करती हैं जब शुभेंदु अधिकारी को भी परमिशन नहीं थी। वहां पर आज तक की टीम गई थी और यह बात सामने आई थी कि महिलाएं डर रही हैं। महिलाएं नकाब पहन पहन कर बयान दे रही थी और कह रही थी कि देखिए हम तो टीएमसी के ही समर्थक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहां पर शेख शाहजहां तब से महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है। ममता बनर्जी को ये बात पता है लेकिन आती नहीं है देखने के लिए। ममता बनर्जी जो खुद चीफ मिनिस्टर होके, वुमेन होके उनको अरेस्ट नहीं करवा पा रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए शेख शाहजहां, ममता जी जानते हैं शेख शाहजहां कहाँ है। दोनों को निकाला, शिबू सरदार, उत्तम हाजरा को, दोनों को निकाला, लेकिन शेख उसका ऊपर जो गैंग रेप का आरोप लगाया पुलिस ने, आप सोचिए गैंग रेप का आरोप अभी लगाया, लेकिन शेख शाहजहां को रख दिया क्योंकि 30% वोट उनको चाहिए। महिला के ऊपर कुछ फर्क नहीं है, उनका विश्वास ही नहीं है। अभी 30% वोट अगर नहीं मिलेगा ना, इधर उधर हो जाएगा ना, तो उसको सीट कैसे मिलेगा? तो सबसे ज्यादा है कि हमसे आशीर्वाद का हाथ शेख शाहजहां के ऊपर है, महिला के ऊपर नफरत का हाथ है, इसलिए शेख शाहजहां को उन्होंने छुपा के रखे। देखिए पश्चिम बंगाल की जो हालत है ये लंबे अरसे से चल रही है कि पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से तबाह हो रहा है और अराजक तत्वों की और घुसपैठियों की गिरफ्त में आ रहा है। और अब यह समय आ गया है कि ममता बनर्जी की सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। महिलाओं के साथ, गरीब तबके के साथ, अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध हो रहे हैं और वो टीएमसी के गुंडों द्वारा किए जा रहे हैं, विदेशी जो घुसपैठियाँ हैं बांग्लादेशी या रोहिंग्या, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो अब बंगाल में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और ममता बनर्जी वोटों के लालच में उनको सहयोग कर रही है। इससे ज़रूरत है कि वहाँ पर इस सरकार को तत्काल बर्खास्त। दर्शकों, जहां पर ममता बनर्जी का अत्याचार वहां पीएम मोदी का संवाद, और यह परिभाषा बिल्कुल पैरेलल टू इक्वल चल रही है। आपको बता दें पीएम मोदी डायरेक्ट इस पर एक्शन लेंगे। पीएम मोदी आने वाले संदेश खाली में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं से वहां पर बातचीत करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे और ममता को बेनकाब करेंगे। ममता ने क्या समझ रखा है? टीएमसी नेता, इसके साथ साथ जो नेता टीएमसी के गिरफ्तार हुए हैं, आपको बता दें कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि केवल दिखावा मात्र है। ये मेन अक्यूज्ड यानी कि मेन आरोपी शेख शाहजहां को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है ममता बनर्जी? आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने तो अपने नेताओं को गिरफ्तार कराया, बीजेपी ने अभी तक एक भी बीजेपी नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं कराया है? इसके साथ शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि हमने तो बीजेपी के नेताओं से भी हम मुलाकात करेंगे जिनको अरेस्ट किया गया है और वहां पर महिलाओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें ममता बनर्जी हर तरीके से केंद्र को घेरने की कोशिश कर रही हैं और संदेश खाली में पीएम मोदी के आने से ज्यादा चिंतित हो गई हैं। ठीक इस तरह से यहां पर सुकांत मजूमदार और बीजेपी के तमाम नेता ने निशाना साधा है कि हमारी
हमारी कोर्ट में जीत हुई है और हम आगे लड़ते रहेंगे। चुनावों की वजह से हम ये नहीं करा रहे। संदेश खाली की महिलाएं न जाने कितने सालों से शेख शाहजहां का आतंक सह रही हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में गुंडे उठाकर ले जाते हैं महिलाओं को और मन मर्जी, मन मौजिया जो वक्त में आता है, जो काम में आता है वो करते हैं। लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ये केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है। जहां पर अत्याचार वहां बीजेपी सरकार, ऐसा नारा मोदी की गारंटी में हम देखते हैं। और देखिए, महिलाओं को यहां पर आशा है कि मोदी जी आएंगे तो समाधान करेंगे। पश्चिम बंगाल देश का ही हिस्सा है, ममता इस बात को समझे, ऐसा जनता कह रही है।